اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کرن کرن اجالا سیریز، محمود فاروقی کے افسانے، مرتب مشہود فاروقی۔ آج کا افسانہ، ایک موت ایک زندگی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ جاڑے کی رات تھی۔ شہر سے پہاڑی دیہاتوں کی طرف جانے والی اس سڑک پر گہرا کوہر چھایا ہوا تھا، جو سانپ کی کنڈلی کی طرح پہاڑی مسافر خانے کو اپنے نیم دائرے میں لیے ہوئے نشیب کی طرف چلی گئی تھی۔ موٹروں کے اڈے سے قریب عمدہ تعمیری لکڑی سے بنا ہوا چھوٹا سا مسافر خانہ موسم بہار کے برعکس اداس اور سنسان تھا۔ تاہم اس رات مختلف سمتوں میں سفر کرنے والے مسافر جمع ہو گئے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد درمیانی کمرے کی میز پر وہ گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے اور کچھ ہی دیر میں رسمی گفتگو گرما گرم بحث میں تبدیل ہو گئی۔ ظاہر ہے جاڑے کی سرد راتوں میں ٹھنڈی اور نرم بات چیت کی نسبت تیز گرم بحث ہی وقت گزاری کا اچھا ذریعہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ انگیٹھی کے لپکتے ہوئے شعلوں، کافی کی گرم گرم پیالیوں اور سگریٹ کے ملجگے دھوئیں میں بحث بل کھاتے ہوئے ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف فراٹے بھر رہی تھی۔ گفتگو میں حصہ لینے والوں کے چہرے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تمتما اٹھتے تھے۔ میز کے اطراف بیٹھنے والوں میں ایک موٹی ادھیڑ عمر کی سرخ و سفید رنگت والی عورت تھی، جو اس گفتگو سے قدرے بیگانہ سویٹر بننے میں مصروف تھی۔ اس کے قریب کاسنی رنگ کا گرم چیسٹر پہنے ایک دبلی پتلی سانولے رنگ کی نوجوان لڑکی اپنے ہاتھ میں ایک ناول تھامے تیز گفتگو کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے انداز اور گفتگو میں ہاتھوں کی بے سبب اضطراری حرکت سے اس کے انتہائی جذباتی اور غیر مستقل ہونے کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ سرخ کتاب تھی جس پر جلی حروف چٹخارے دیکھ کر بڑی حد تک اس کے لذت پسندانہ ذوق کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس کے مقابل میں بیٹھا ہوا چھریرے بدن کا شخص ان لوگوں میں سے تھا جن کے زیادہ تر اوقات مسافر خانوں ہی میں گزرتے ہیں اور جو ہر محفل میں اپنی جگہ بنا لینے کے گرز سے واقف رہتے ہیں۔ وہ ایک ماہر فن کی طرح مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہر موضوع پر مسلسل بول رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس لڑکی کی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے ہوسناک حلقوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چوتھی نشست پر ایک کبڑا شخص منہ میں گھٹیا تمباکو کا موٹا سا چرٹ دبائے اور کلپاک کی گرم ٹوپی پہنے اپنے دونوں ہاتھ میز پر پھیلائے ہوئے اس طرح جھکا بیٹھا تھا کہ کمرے کی مدھم روشنی میں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کی پوری توجہ ان دونوں کی گفتگو پر لگی ہوئی ہے یا
उनको घूरने पर। वो इस तरह टिकटिकी लगाए हुए था जैसे वो इन बातों की तय में इन जज्बात को कुरेदना चाहता है जो उनके जहनों में पोशीदा हैं। थोड़ी थोड़ी देर से वो अपनी जेब में हाथ डालता और कुछ न कुछ निकाल कर खाते हुए आहिस्ता से बड़बड़ाने लगता, यूं खामोश बैठे देखकर कि वो इस माहौल का एक फर्द भी हो और बज़ाहिर नहीं भी। फिजा की सतहियत में कुछ इस तरह की गहराई पैदा हो रही थी जिससे दूसरे बैठे हुए मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते थे। चुनाचे मोटी औरत सुई चलाते चलाते एक आध बार उचटते हुए उसे देख लेती और फिर वो नफरत आमेज लापरवाही के साथ अपने काम में लग जाती। कासनी चेस्टर पहनी हुई खातून भी कतराई हुई निगाह से कदरे सहम कर उसे देख लेती। एक निशिस्त और काली थी। मुसाफिर खाना भी आम निशिस्तों की तरह कहा नहीं जा सकता कि वो कब पुर हो जाएगी और उस पर बैठने वाला किस खुमाश का आदमी होगा। एक्टरों, लीडरों, एक्टर्सों, फिल्मों और कुत्तों से मुताल्लिक काफी गुफ्तगू हो चुकी थी। मौजू से थक कर बातूनी लड़की ने एक दूसरी ही बात छेड़ दी। क्या आपने ये नावल देखा है? चटखारे, अरशद का लिखा हुआ? क्यों नहीं? चौथी निशिस्त वाला बूढ़ा अपनी बूढ़ी उंगलियों को मरोड़ते हुए कुछ बड़बड़ाया और उसने अपनी जेब से कुछ दाने निकालकर फांक लिए। उस वक्त बाहर का दरवाजा खुला और सर्दी की एक तेज लहर के साथ अखेरे बदन का दराज कद मुतवस्सत उम्र का मुसाफिर अंदर दाखिल हुआ। नवारिद सियाह रंग के लांबे कोट में मलबूस था। गरम कोट के उठे हुए कॉलरों के दरमियान उसका निस्फ चेहरा ढका हुआ था। सिर्फ चमकती हुई चौड़ी पेशानी और दो गहरी नीलगूं आंखें नुमाया थीं। उसने गोशे में रखे हुए छोटे टेबल पर अपना बैग रख दिया और खूंटी पर भारी कोट टांगते हुए कमरे के माहौल पर एक उचटती हुई नजर डाली और आखिरी काली निशिस्त पर बैठ गया। नवारिस की आमद पर गुफ्तगू बंद हो गई थी, लेकिन खामोशी को बढ़ाने में सांवली लड़की ने एक तरह की सुबकी महसूस की और सियाको सबाक का लिहाज किए बगैर अचानक कहना शुरू किया। लेकिन इस तसन्नो को महसूस करके जो गुफ्तगू की बेरब्ती से जाहिर था, तीसरी निशिस्त वाला नौजवान खदरे झींप सा गया। मैं कहती हूं, वो बोली, अरशद एक बाकमाल अदीब है। जिंदगी से मुताल्लिक मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। जिंदगी? उसके मुखातिब ने कसलमंदी के साथ कहा, मैं जिंदगी के मुताल्लिक सोचना पसंद नहीं करता। जिंदगी गुजारने के लिए इस कदर सोचना ठीक नहीं है। ये तब ही मुमकिन है, लड़की ने अपने कान के आवेजों को घुमाते हुए कहा, जबकि हम सोच विचार के बंधनों से आजाद होकर परिंदों की तरह बसेरा करना जान लें। एक बेपरवाह और आजाद जिंदगी। अरशद के ख्याल में भी जिंदगी लज्जत कोशी का दूसरा नाम है। जिंदगी की लज्जत को अगर जाहिरी क़यूद से आजाद कर दिया जाए तो हम जंगली शहद की मक्खियों की तरह उस अमृत को हासिल कर सकते हैं जिसकी प्यास हर लम्हे इंसान महसूस करता है और जिसे समाज खतरा खतरा करके हमारे हलक में टपकाता है।
अरशद के नावलों और अफसाने समाज की इस कंजूसी के खिलाफ एक बगावत हैं। वो बेहिस समाज के हाथ से इस जाम को छीनकर सब कुछ हलक में एकदम उंडेल लेना चाहता है। लेकिन इस तरह बूढ़े मर्द ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, हलक में फंदा जो पड़ जाएगा। ये कहकर वो बेतुके पन से हंसने लगा। खुद अरशद के हलक में भी इसी तरह फंदा पड़ गया था। नौवारिद ने बज़ाहिर बूढ़े को मुखातिब करते हुए कहा, ये बात मुझे अब तक अच्छी तरह याद है। क्या आप अरशद से वाकिफ हैं? ये कहते हुए उस लड़की ने कदरे चेहरे को कम करके एक गहरी नजर नौवारिद पर डाली। साथ ही साथ वो उसके कद्दोकाल की मौजूनियत को देखकर कदरे लिजा गई। हाँ, क्यों नहीं? नौवारिद ने चुपती हुई जज्बाती नजरों को अपनी बेअतनाई से नाकाबिले तवज्जो बनाते हुए कहा, जब तक वो जिंदा रहा उसकी हर घड़ी मेरे साथ ही गुजरी। ओह, तो क्या वो मर गया? गैर ज़ाब्ता तबीयतों की तरह वो इस इंकिशाफ पर चौंक पड़ी। इस कदर अच्छा लिखने वाला मुल्क का खूबसूरत अदीब खूबसूरत। चौथी निशिस्त पर बुढ़ा बड़बड़ाया, मौत भी खूबसूरत होती है, जिंदगी से कहीं ज्यादा। मुदाखलत के इस बेतुके पन पर मोटी औरत ने, जो अब कुर्सी की पुश्त पर सर रखे ऊँग रही थी, कशमगी निगाहों से बुढ़े को देखा और फिर जमाइयां लेते हुए आंखें बंद कर ली। खूबसूरत आदमी भी मरते हैं। बुढ़े ने जेब से कुछ दाने निकालकर मुंह में डाल लिए। मौत जिंदगी से कहीं ज्यादा वजनी हकीकत है, वो कहने लगा। इस वजन को जाने बिना अगर अरशद की हम ख्याली में हम बेसोचे समझे जिंदगी बसर करें तो नादान बच्ची ये बड़ी तौहीन ठहरेगी, हम सब की तौहीन। इस खुली कायनात में हम ही तो वो राज हैं जिसे इस जानकार राजदां ने आश्कार किया है। इस राज की बेकदरी करना, ये सोचकर मैं अपने आप को बड़ा नीचा समझने लगा हूं। तुम्हारे अरशद ने ये बात जानी ही नहीं। बेवकूफ, उसको आखिर क्या हक है कि वो हमको समझ बूझ वाले इंसान की बजाय बेसमझ जानवर करार दे? क्या तुम पसंद करोगे? उसने तीसरी निशिस्त की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, मैं बदमस्त रीछ बन जाऊं और तुमको क्या ये जानकर गुस्सा ना आएगा कि तुम इंसान के बजाय मक्कार गीदड़ बन गए हो? और ये बेसमझी से बातें करने वाली लड़की हर एक की गोद में बैठकर आंखें बंद करने वाली बिल्ली बन जाए और ये काला भी ऊँगते ऊँगते बत की तरह चक-चक करने लग जाए और ये हजरत अपनी खूबसूरत दाढ़ी समेत सहर खेज मुर्गों के साथ अजान देने लग जाएं और फिर हम सब अपनी मादाओं और नरों के पीछे बेहयाई के साथ दौड़ते फिरें और लालची कुत्तों की तरह एक दूसरे से हड्डी छीनने के लिए सारी दुनिया में धूम मचा दें। छी छी छी।
یہ تو اپنی حقیقت پر پردہ ڈالنا ہوا۔ اس بگڑتی چال کو دیکھ کر ہی تو وقت کے جواں سال ادیب پریمی نے اپنی کہانیوں کی نیو ارشد کی بل حویسی کے برعکس دھرتی کے رازداں اور پالنہار کے پریم پر رکھی ہے۔ وہ ارشد کی طرح انسان کا مطالعہ جانور کی نظر سے نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان کے مستقل بذات وجود کا قائل ہے۔ وہ زندگی کو محض ایک لمحاتی چٹخارا قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کے نزدیک زندگی ازلی محبت کا ایک دائمی ذائقہ ہے۔ ارشد لذتوں کے پیچھے نادیدہ بن کر دوڑتا ہے اور پریمی قربان ہونے والی لذتوں کو سیر چشمی کے ساتھ نظر انداز کر دیتا ہے۔ ارشد بھکاری ہے اور وہ سماج سے بھیک مانگتے مانگتے لوٹ مار پر اتر آتا ہے۔ پریمی مستغنی ہے، وہ دل کھول کر سماج کو اپنا سب کچھ تقسیم کر دینا چاہتا ہے۔ ارشد عورت کو کرائے پر خود غرضی کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پریمی عورت کو نادر تحفہ جان کر اپنے کاشانے کی رونق قرار دیتا ہے۔ ارشد کے نزدیک عورت دل بہلائی کا کھلونا ہے، لیکن پریمی اس کو جزو حیات جان کر اس کی قدر کرتا ہے۔ ارشد کے ناول انسانوں کو بلندی سے پستی میں دھکیل دیتے ہیں، لیکن پریمی کے افسانے پستیوں کے راہبر نہیں بلکہ بلندیوں کے نقیب ہیں۔ ارشد کے تصورات کا ماخذ حیوانی جبلت ہے اور پریمی کے خیالات کا مرجع انسانی معنویت ہے۔ وہ اپنے جیسے حیوانوں کا ریزہ چین ہے اور یہ مافوق الانسان علیم و قبیر ہستی کا مہمان ہے۔ میں نے زندگی کے وقار کو پریمی سے سمجھا ہے۔ کیا آپ پریمی کو جانتے ہیں؟ نوارد نے بوڑھے کی مسلسل تقریر سے اکتا کر بات بدلنی چاہی۔ کیوں نہیں، کون ہے جو اس وقت پر چھائے ہوئے قلمکار کو نہیں جانتا، جو ارشد کے چٹخارے پڑھتا ہے اسے پریمی کا امرت ضرور پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن بچے، یہ تمہارا چہرہ اتنا دلگیر کیوں ہو رہا ہے؟ لو یہ چباؤ۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے جیب سے ایک ڈبہ نکال کر نوارد کے سامنے رکھ دیا۔ تھوڑی فرصت میں یکجا ہونے والے مسافروں کے لیے پریمی اور ارشد کی بحث بڑی بوجھل بن جاتی ہے۔ گنگوتری کی سڑک پر اکثر مسافر خانوں میں مجھے یہی تجربہ ہوا ہے۔ تیسری نشست والے نوجوان نے بہت دیر تک خاموش رہنے کے بعد کہا، ویسے تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں سوچتی ہوں کسی قصے کو چھیڑ کر ادھورا چھوڑ دینا کم از کم عورتوں کو تو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کچھ ارشد کے حلق میں ہندا پڑنے والی بات کہہ رہے تھے؟ سانولی لڑکی نے ناول پر اپنی کوہنی کا ٹیک لگاتے ہوئے نوارد سے کہا، ہندا پڑنا، یہ بات میں نے صرف محاورے کے طور پر ہی نہیں کہی تھی، بلکہ یہ ایک واقعہ ہے۔ در حقیقت نوارد نے آگے کا جملہ دہرانے سے پہلے اپنے شانوں کو خفیف سا جھٹکا دیا، جیسے وہ اپنے اضطراب کو چھپانا چاہتا ہے۔ ارشد نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لی؟ اف، آپ نے کس قدر خطرناک لفظ کہا ہے۔ کیا ارشد نے خودکشی کر لی؟ کب؟ کیسے؟ نوارد نے ان سوالات کا فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔
बाहर बर्फ गिरने की सरसराहट और अंदर अंगीठी में चटकने वाले कोयलों की आवाज खामोश फिजा में इस तरह समू गई थी कि खुदकुशी के लफ्ज से पैदा शुदा तासुर और ज्यादा गहरा हो गया। बूढ़े के चुरुट से निकलने वाले कसीफ धुएं में वो सब ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे कुछ देर के लिए सुकूत मुजस्सिम होकर 5 नशिस्तों पर मुनक़सिम हो गया हो। उस रात नौवारिद ने बगैर किसी तमहीद और मुतालबे के अचानक इस तरह कहना शुरू किया जैसे वो सुनाने के लिए नहीं बल्कि अपने जहन को इस गैर मुतवक्को याद के बोझ से हल्का करना चाहता हो। मैं और वो, हाँ, मैं अरशद के पास मौजूद था। एक औरत अपने हाथ में बस्ता उठाए हुए पूछे बिना अंदर आ गई। वो कैसी औरत थी ये बताते हुए मेरा दिल घुटता है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि उस औरत को देखकर कराहियत से मेरी तबीयत मतला गई। उसके सारे जिस्म पर सुर्ख छाले फैले हुए थे। यूं जान पड़ता था कि उसके जिस्म में खून की जगह खबीस मादे भरे हुए हैं। वरम से तमतमाया हुआ उसका चेहरा सड़े हुए टमाटर की तरह फूल रहा था। उसने आते ही अरशद की मेज पर वो बस्ता पटक दिया और बड़ी बेबाकी के साथ छूटते ही बोल उठी, क्या तुम आज मेरे साथ शब बसरी कर सकते हो? अरशद अपने बेलगाम ख्यालात और अतवार के बावजूद बेहयाई की इस नफरत अंगेज नंगी बात को सुनकर कोई जवाब दिए बगैर मबहूत बैठा रहा। हया और शर्म भी कीमती होती है। पहली मर्तबा उसके दिल में ये बात जाग उठी। बमुश्किल ये जुमला घुटते हुए लहजे में उसने अदा किया, तुमको मुकर्ररा जगह पहुंचने में शायद गलती हुई है। गलती? वो तमतमा उठी, क्या ये सब कुछ मेरी ही गलती है? ये कहकर उसने बस्ते में से कई एक किताबें निकालकर मेज पर बिखेर दी। चुटकियां, भाभी, हम जब सोते हैं, इक़दाम, चटखारे, ये सब, हाँ, ये सारे अफसाने और नावल, क्या तुमने ये गलतियां नहीं की? आह, वो मनहूस दिन के मैं तुम्हारी इन गंदगियों को बड़े चाव से मेज पर जमाया करती थी और तुम्हारे फोटो को मुख्तलिफ करीनों से घूरती रहती थी। उफ, वो मेरी रातें कि मैं अपने बर्बाद शौहर को बेसहारा छोड़कर तुम्हारी इन तबाहकुन सोचों के लिए जाग जाग अपनी आंखों को सुर्ख कर लेती थी। आह, तुमने ये सब क्यों लिखा? क्यों लिखा तुमने? बोलो, मुझे जवाब दो ना। इंतहाई तैश से उसकी आवाज भर्रा गई और वफूर जज्बात से उसका सांस सीने में समा ना सकता था और बेअख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उफ! यहां पहुंचकर नौवारिद अचानक खामोश हो गया और खला में धुएं के एक टूटते हुए हल्के को देखने लगा। मोटी औरत भी कभी की जागकर इस अनोखी दास्तान को बड़ी दिलचस्पी से सुनने लगी थी। बुढ़ा उसी तरह साकित व सामित मेज पर हाथ फैलाए नौवारिद के चेहरे पर टिकटिकी जमाए बैठा था। सांवली लड़की अपने कासनी चेस्टर में इस तरह भौचकी नजर आ रही थी कि जैसे वो इस दर्द अंगेज तासुर को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही है। दूसरा नौजवान भी उस दिलचस्पी के इजहार को रोकने की
नाकाम कोशिश में मसरूफ था जो लम्हा ब लम्हा नौवारिद की गुफ्तगू से बढ़ती जा रही थी। बुढ़े के सिगार से निकलने वाले धुएं का तीसरा हल्का जब फिजा में टूट कर फैल गया तो नौवारिद ने छोड़ी हुई बात को जोड़ते हुए कहा कि अरशद चुपचाप बैठा इस अनूठे हादसे से दो चार था। अजनबी औरत सिसकियां लेते हुए बोलती चली जा रही थी, तुम इन गलतियों से इनकार कर सको, ऐसी कोई गुंजाइश तो नहीं है। आह जालिम इंसान, खूबसूरत बहरूपिये, तूने मुझे तबाह कर दिया। एक दूसरे को जाने बिना तुमने अपने नावलों और अफसानों के जरिए मुझे मौत के किनारे लगा दिया। भला बताओ वो कौन था जिसने मुझे अपने बुर्दबार शरीफ उत्तबा शौहर के खिलाफ वरगलाया? वो कौन था जिसने नौमौलूद बच्चे का अपने हाथों गला घोटने पर आमादा किया? वो कौन था जिसने असमत और नामूस जैसी बेबहा दौलत को खुले बंदों बाजारों में लुटाने पर आमादा किया? पापी, जादूगर, देख मेरे इस गंदे जिस्म को देख, इन रिश्ते हुए नासूरों को देख, इस बहती अफूनत को सूंघ, इन फूले हुए गालों पर नजर डाल, शैतान के एजेंट। इस तबाह व बर्बाद हस्ती को देख जिसे मैंने हर बुल हवस के लिए क़वाने नैमा बना दिया था। मुझे चूम मेरे शायर, मुझे अपने सीने से लगा ले मेरे अफसाना निगार, मुझे अपनी आगोश में भींच ले मेरे हसीन कलमकार। सारी दुनिया को सैराब करने के बाद, अपना सब कुछ दूसरों के लिए लुटा देने के बाद, अब मैं अपनी इस आखिरी तमन्ना को और इस आखिरी ख्वाहिश को लेकर तेरी बारगाह में आई हूं। मुझे पहचान, मैं तेरे तखय्युलात का निचोड़ हूं, तेरे तसव्वुरात का मुरक्का हूं, तेरे ख्वाबों की जीती जागती ताबीर हूं, तेरे इबहाम की खुली तफसीर हूं। अब जबकि सारी दुनिया मुझे ठुकरा चुकी है, मैं तेरे पास पनाह लेने आई हूं। पनाह नहीं, नहीं, ये एक कमजोर लफ्ज है। मुझे तेरी पनाह की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सौदा, एक बराबरी का लेन देन। या तो तू मुझे वो सब कुछ वापस दे दे जिसे मैंने तेरे समझाने पर खो दिया। मेरा दमकता हुआ हुस्न, मेरा चढ़ता हुआ शबाब, मेरी शर्माई हुई अस्मत, मेरी रोशन शराफत, मेरी लिजाई हुई निस्वानियत, मेरी आंखों की चमक, मेरे सीने में पलने वाली ममता, मेरा मासूम बच्चा, मेरा बुर्दबार शौहर, और सबसे बढ़कर मेरी मानवियत जिसकी आफरनशी में खुदा की मोहब्बत और खौफ घुला हुआ था। जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम ये सब कुछ वापस दे सकते हो? मैं जानती हूं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आखिरी इल्तिजा यही है कि तुम भी मेरे इस रूह फरसा अमृत को नोश करो जो तुम्हारे ही नफस परस्ताना और नाखुदा परस्ताना नजरियों का आमेजा है, और जिसे पिला पिला कर मैंने कई एक दमकती हुई नौजवानियों को हमेशा हमेशा के लिए मदहोश कर दिया। क्या अब भी तुम इस जुर्म से इनकार करते हो? क्या इन गलतियों को तस्लीम न करने की तुम में हिम्मत है? तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी तो नहीं। इस कदर कहकर वो बेबस औरत थक गई। उसने अपना सर दोनों हाथों से भींच लिया, उसकी पुतलियां सिमट गईं और दीदे फैल गए, और एक दिल आवेज आह के साथ वो गश खाकर गिर पड़ी। अरशद घबरा कर उठ खड़ा हुआ और बदिक्कत उसको
बिस्तर पर लिटाकर होश में लाने की तदबीरें करता रहा। जब वो खामोश बैठा इस मजलूम और तबाह हाल औरत के भयानक चेहरे को देख रहा था तो एक अजीब तरह की कैफियत उस पर तारी हो गई। इस तरह जैसे सारे हवास उसकी कुव्वत इरादी की गिरफ्त से आजाद हो चुके हैं और वो उनके इस्तेमाल की कुव्वत से आरी हो गया है। बड़ी देर तक वो एक खोए हुए अंदाज में बैठा रहा। कुछ ही देर बाद उसके जहन में दफतन एक कयामत सी मच गई। यूं महसूस होने लगा जैसे कोई आलीशान इमारत जलजले के झटकों से यकबारगी गिरने लगी हो। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप पर काबू पा सका। इस दरमियान में वो औरत थोड़े थोड़े वक्फे से उछल पड़ती और उसकी लिखी हुई किताबों के फिक्रे बड़बड़ाती रहती। उसका हर फिक्रा अरशद के दिल पर तीर बनकर लग रहा था और उसके लिए सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि वो उनको सब्र से अपने दिल पर सहारता रहे। कदरे सुकून से इस पूरे वाक़े पर गौर करने के बाद औरत के लगाए हुए इल्जामात की सच्चाई उसके जहन में जागोजी होती गई। मैं मुजरिम हूं। उसको एहसास हुआ खुदा की मोहब्बत और खौफ को नजरअंदाज करके उसने मफाद परस्ती, बुल हवसी और नफ्स परस्ती को फैलाने में जो काविश की थी वो एक गहरी चोट की तरह उसके जहन पर उभर आई। जिस तरह उसने इंसान को पेट का और नफ्स का गुलाम बनाया था और औरतों को बेबाकी और बेहयाई सिखाई थी, उसके नताइज इस बेदर्दी से मुनकशिफ हो गए थे कि वो अपना पहलू बचाने के लिए कोई हीला तलाश करने से कासिर था। उसको गुजरे हुए दौर की हर जुम्बिश कलम दिमाग पर ज़र्ब लगाती हुई और उसकी तहरीरों की हर सतर गले में फंदा बनकर फंसती हुई और उसकी किताबों की हर खुशनुमा जिल्द उसके लिए शिकंजा कसती हुई महसूस होने लगी। उसका सर नदामत और पशेमानी से झुक गया और उसने चुपके चुपके पहली बार खुदा के सामने अपनी खताओं का एतराफ किया और गिड़गिड़ा कर मौत की दुआ मांगी कबल इसके कि वो औरत होश में आए। लेकिन सुबह सुबह वो सितम रसीदा एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई। उसने एक भटकती हुई निगाह माहौल पर डाली और फिर वो बेअख्तियार खै मारने लगी और अरशद को परे धकेल कर चीखती चिल्लाती बाहर निकल गई। वो चिल्ला रही थी, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया वो सब कुछ जो खो गया था। उसके जाने के बाद कहते कहते मवारिद वफूर जज्बात से रुक गया और उसने मेज के किनारे को अपनी मुट्ठियों से थाम लिया। फिजा में अजीब तरह की गहराई पैदा हो गई और सुनने वाले जैसे इस गहराई में डूब से गए। रात के इस आखिरी हिस्से में तेज सांसों के सिवा इन 5 निशिस्तों पर जिंदगी जैसे सुन होकर रह गई थी। कदरे बाद नौजवान लड़की ने अचानक जाग उठने वाले एहसास के साथ कलाई के नीचे रखी हुई किताब को गैर शऊरी हालत में परे धकेल दिया, जैसे वो किसी जहरीले नफरत अंगेज कीड़े से डर गई हो। किताब खुलकर बुढ़े के सामने फैल गई। अचानक सबकी नजरें लम्हे भर के लिए उस फोटो पर जम गईं, जिसमें अरशद मेज पर लिखने में मसरूफ दिखाई दे रहा था। उसके जाने के बाद नौवारिद ने कुछ इस तरह बात छेड़ी जैसे वो सबकी तवज्जो अरशद की तस्वीर से हटाना चाहता है, लेकिन कपाक की गरम टोपी वाला बुढ़ा उसी तरह अपनी मुतजस्सिस निगाहों से तस्वीर को घूरता रहा। अरशद ने एक नीम जुनूनाना हालत में अपने सारे मुसव्वदों और किताबों को फर्श पर ढेर कर दिया
اور بے خیالی کے ساتھ اس ڈھیر پر بیٹھ کر آگ لگا دی۔ دوسرے دن اس کے کمرے میں سوائے راکھ کے ڈھیر کے اور کچھ نہیں تھا۔ نوارد کے چپ ہونے پر موٹی عورت بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ تیسری نشست والے نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا، جیسے وہ اپنے آپ سے شرم کر رہا ہو۔ سانولے رنگ والی لڑکی نے ایک درد انگیز آہ کھینچی اور نیچے نظر کیے منفعلانہ انداز میں اپنی لمبی لمبی انگلیوں سے میز کے روغن کو کھرچنے لگی۔ لیکن ان سب کے برعکس وہ عجیب و غریب بوڑھا آدمی اپنی کرنجی آنکھوں سے کبھی چٹخارے کے مصنف کی تصویر کو اور کبھی نوارد کے چہرے کو گھورتا رہا۔ انگیٹھی میں کوئلے بجھ بجھ کر راکھ ہو گئے اور باہر ہواؤں کے چلنے کی تیز سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ نوارد نے بھی چندے توقف کر کے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، ارشد مر گیا، مگر اس کی لکھی ہوئی لعنتیں انسانوں کی تباہی کے لیے ابھی تک زندہ ہیں۔ کاش یہ ممکن ہوتا کہ دنیا کے ہر گوشے سے ان کو جمع کر کے ارشد کی یاد میں اسی طرح جلا دیا جاتا۔ ناممکن، دفتن بڈھا بڑبڑایا، اس سے کیا ہوتا ہے جبکہ ارشد خود زندہ موجود ہے۔ زندہ ہے؟ نوارد کے سوا تینوں بیک وقت بول اٹھے۔ ہاں، بوڑھے نے پر اعتماد لہجے میں کہا، وہ زندہ ہے، اس نے خودکشی نہیں کی، وہ موجود ہے دنیا میں اب بھی، اس وقت بھی، بلکہ اس کمرے میں بھی۔ اس نے خودکشی نہیں کی، وہ موجود ہے اس کمرے میں۔ تین مختلف آوازیں باہم الجھ گئیں۔ جھوٹ، نوارد نے کہا، وہ مر چکا ہے، قطعی اس بارے میں مجھے کوئی شک نہیں، ایسا تو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، لیکن میں، بڈھے نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا، اسے دکھا سکتا ہوں اسی وقت۔ دکھا سکتے ہو؟ تینوں حیرت سے بول اٹھے۔ کیوں نہیں؟ بڈھے نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کتاب کھول کر ان کے سامنے کر دی۔ یہ ارشد ہے۔ تیسری نشست والا شخص بول اٹھا، سٹیائے ہوئے چاچا جان، یہ تو اس کی تصویر ہے۔ سانولی خاتون مسکرا اٹھی اور موٹی عورت نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے نادان بچوں، بڈھے کے پر اعتماد لہجے میں کوئی فرق نہیں پڑا، یہ اس کی تصویر ہے اور یہ، بڈھے نے بالکل ڈرامیٹک انداز میں ایک ہاتھ سے کتاب کو کھولے ہوئے دوسرا ہاتھ نوارد کے نچلے نصف چہرے پر اس طرح رکھ دیا کہ اس کی داڑھی کے بھورے بال پوری طرح چھپ گئے۔ کیا یہ ارشد کا چہرہ نہیں؟ وہ فاتحانہ انداز میں غرایا۔ بھوت! سانولی لڑکی سہم کر چیخ اٹھی۔ موٹی عورت ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی نشست پر پھیل گئی اور وہ نوجوان شخص غیر شعوری طور پر یک لخت اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ نوارد نے لمحے بھر کے تذبذب کے بعد نرمی سے بوڑھے ہاتھ کو اپنے چہرے سے ہٹایا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں ہی ارشد تھا، لیکن اب نہیں۔ دوستو، یقین کرو، ارشد مر چکا ہے، اگرچہ میں زندہ ہوں۔ تم ارشد ہو؟ ارشد مر چکا ہے، تم زندہ ہو، تم ارشد نہیں، وہ مر چکا ہے۔ یہ عجیب معمہ ہے، دوسرے شخص نے دانت پیستے ہوئے الجھ کر کہا۔ اف، کس قدر خطرناک مذاق ہے، یہ سوچ کر تو میں کپکپا رہی ہوں، کہتے ہوئے سانولی لڑکی کے دانت
कटकटा उठे। नौवारिद ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया और इत्मीनान के साथ सियाह गरम कोट पहनने लगा। बाहर से परिंदों के चहचहाने और मुर्गों के बांग देने की आवाज सुबह का पयाम लेकर आई और मुसाफिर खाने की कादमा ने दरवाजों के पर्दे उठा दिए। आसमान साफ था और तूफान का जोर कभी का टूट चुका था। खुले दरीचों में से उफ़ पर सुबह का सितारा दिखाई दे रहा था और नसीम सहरी के हल्के हल्के झोंके दरख्तों को शौक़ी के साथ छेड़ रहे थे। दूर पहाड़ियों के पीछे से सुबह का सुहाना चेहरा आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगा। नौवारिद ने पूरे वक़ार के साथ अपना बैग उठा लिया और रुखसत होते हुए कहने लगा, जिस्म के जिंदा रहने और मर जाने की कोई अहमियत नहीं। जिंदगी और मौत को परखने के लिए इंसान की मानवियत को टटोलना चाहिए। अरशद की मानवियत मर चुकी है, अगरचे उसका जिस्म जिंदा है, एक नई मानवियत को लिए हुए। अरशद की नई मानवियत सुबह के सितारे को पैदा करने वाले आका के अब्दी प्रेम का एक अनोखा मुरक्का है। सुबह बखैर बूढ़े चाचा। उसने बूढ़े चाचा से दरवाजे के पास कदरे रुक कर कहा, अपने महबूब कलमकार को भूल न जाना। ये कहते हुए उसने अपने चर्मी बैग को दिखाते हुए उन सब के आगे कर दिया। 8 मुतहय्यर आंखों में 5 सुनहरे हुरूफ उभर आए, प्रेमी। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला